Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sat means truth, Logos means a study or science, Sathology means a science of truth, a study of truth. Opposite of that is mythology, which means science of fake lie imagination or study of fake lie imagination. Today we are seeing again the pandemic, and now we are seeing war type of scenario right now. Economy is gone, global economy is destroyed, but still we are thinking of how to prove ourselves right. Now, what happens to the people, common people? I can tell you in USA, inflation is at the highest level in last 40 years. And in the USA, the gas prices have skyrocketed and it's going to go further up. Analysts are predicting it can go up to $10. And people have not yet still recovered from pandemic still going on. So I have a very, very special guest from India, and he has served in the Indian Navy and he's retired from Indian Navy, and he has also written a book on on the Pulwama incident, which recently there was a anniversary for that. Lord, dear, let us welcome Petty Officer Shri Manan Bhatt. Welcome, Manan Bhatt. Namaste, everybody. It's great to be get to be back on pathology, and we'll keep debunking the myths. Thank you. Thank you. Jai Hind. So, Jai Hind. Before we start off, tell me one thing, based on my first question. How logical is to get into any war right now for any country? War is not at all logical for any country at present, and I don't see it happen any soon. The thing is that Russia had an issue with Ukraine joining hands with NATO. Russia had an issue with NATO getting closer to their borders. Russia never wanted. I don't see Russia invading Ukraine any soon. The thing is, when the approval ratings of Mr. Biden are so low that he invents a war out of nowhere. Why he is doing so, he only knows. And what happens is NATO, suddenly all the allies of NATO joins the chorus. What ये जो चीजें लगातार हो रही है उसमें एक बहुत बड़ी बात सामने ये भी आ रही है. what I see is कि आप जब रशिया और यूक्रेन की बात करने लगते हैं तो सी रशिया इज नॉट द नंबर वन एनिमी और द नंबर वन competitor of United States of America. The leadership of the world that US used to enjoy till date has been challenged in a big way by the Chinese. Now, take this case. Russia is so much focused on the America is so much focused. Biden government is so much focused on the Russian issue that they are continuously ignoring the Chinese hegemony and the Chinese military expansion. The IOR, our India's Foreign Minister, Mr. S. Jaishankar, has recently said that in answer to a question when he was asked कि आप क्या सोचते हैं रशिया और यूक्रेन का ये जो और इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है. जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग हुआ तब भी इंडिया वाज अवे फ्रॉम इट. इंडिया डिडंट सपोर्ट रशिया नीदर यूएस. अभी हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 71 वॉर में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो इट वाज रशिया हु स्टूड विद इंडिया फॉर 5 टाइम्स और उन्होंने उस वीटो को विथहेल्ड किया था. अपना वीटो यूज करके इंडिया के जो सीज फायर के लिए कंटिन्यूसली प्रेशर किया जा रहा था पोलैंड और अलग अलग कंट्रीज से यूएस के सपोर्ट में, पाकिस्तान के सपोर्ट में, वो उन्होंने स्टैंड किया था. तो रशिया हैज बीन अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड ऑफ इंडिया. सो इंडिया कैन नेवर बिट्रे the best of their friends. There is no doubt about it. In last 1 decade or so, India has come nearer to USA also. We are having a very good relationship with the US. The Quad is another example of India and US relationships. But the commitment that India wants to see from the US and other Quad countries in the IOR is yet to be seen. The Quad has to, from a dialogue or from alliance, Quad has to evolve to a military alliance of sort. That is not happening as yet.
और उस बीच में उन्होंने अपना अचानक अपना जो बिगेस्ट जो उनका कॉम्पिटिटर जो था, जो बिगेस्ट स्क्वीज मैं कहूँगा, वो जो था चाइना, उससे अपना फोकस, दे हैव सडनली चेंज देयर फोकस और दे टॉक ओनली अबाउट रशिया रशिया रशिया। तो ये जो ये एक वॉर है नहीं, वहां पे कुरेद कुरेद के वॉर को इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उनका, अगर आप कोल्ड वॉर का जो आपका फैसिनेशन है या पुराना जो चीजें आपको बार बार याद आ रही है, उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इन प्रेजेंट सिनारियो रशिया कोई इतना बड़ा कोई सुपर पावर है नहीं। और पहले जो कोल्ड वॉर के समय होता था कि एक तरफ रशिया था, दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों सुपर पावर थे। आज के दिन में सोवियत रशिया हैज ब्रोकन और चाइना इज द नेक्स्ट बिग थिंग। और चाइना का राइज में यूएस का इतना बड़ा रोल रहा है। और इस समय जिस तरह लगातार यूएस, जैसे कि आपने अभी इकोनॉमी की बात करी है, लगातार जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया और यूक्रेन में वॉर होगा करके जो बात हो रही है, उससे कंटिन्यूसली उससे फायदा रशिया को हो रहा है। उससे जिस बंदे की अप्रूवल रेटिंग मिस्टर बाइडेन की लो है वो ऊपर जा रही है, उससे फायदा चाइना को हो रहा है। रशिया को इसलिए फायदा हो रहा है कि फ्यूल प्राइसेस आर गोइंग इन अपवर्ड कर्व, जिससे कि रशिया इज प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम इट। चाइना, बिकॉज चाइना इज एन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री, और इन केस चाइना जब ताइवान को इन्वेड करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि चाइना ताइवान को कब इन्वेड करेगा, उस परिस्थिति में अगर यूएस चाइना के ऊपर एनर्जी ब्लॉकेट डालता है, प्रतिबंध डालता है, तो चाइना, क्योंकि वो रशिया के साथ खड़ा है, चाइना ने क्लियरली कहा है कि वी आर विद रशिया, रशिया इज देयर लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड। ये मुझे लगता है कि ये यूएस की शायद सबसे बड़ी गलती होगी कि उन्होंने रशिया को चाइना की, जैसे उनका लॉन्ग टर्म एली पाकिस्तान भी था, द टेररिस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसको भी उन्होंने चाइना की ओर जाने दिया। अभी परिस्थिति ये है कि रशिया हैज आल्सो मूव क्लोजर टू चाइना। अच्छा तो ये होता कि वो रशिया को एक अपना नेटो एलाई बना लेते और रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करते, बट जो पूर्वग्रह है, जो पुरानी बातें हैं, वो उनके मन से जा नहीं रही है यूएस के मन से, और उस वजह से उन्होंने जो किया है अभी उस परिस्थिति में, अभी अगर आप रशिया पे बैन लगाते हो, यूक्रेन पे अगर कुछ होता है, अगर नहीं भी होता है और आप अगर रशिया पे बैन लगाते हो, तो क्या होगा कि रशिया जो करेंसी बैन आप कह रहे हो कि हम स्विफ्ट का बैन लगा देंगे, स्विफ्ट पूरा यूएस के कंट्रोल में है, हम फॉरेन ट्रेडिंग उनको नहीं करने देंगे, वो कुछ ना एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना इंपोर्ट कर पाएंगे। व्हाट हैपन विद कि रशिया विल मूव मोर क्लोजर इनटू द चाइनीज फोल्ड, and it will be a big thing, it will be a big strategically it will be the biggest blunder। अब तक यूएस ने जितने प्रतिबंध लगाए हैं, जितने ये बार बार हम यूएस ये धमकी देता है कि वी विल हम आप पे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, काट ठोक देंगे, तो इन चीजों से क्या हुआ है, यूएस ने रशिया के ऊपर प्रतिबंध, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया, तो ईरान से जो यूएस के फ्रेंडली कंट्रीज थे, खासकर जैसे इंडिया हो गया, तो हम वहां से ऑयल लेते थे, गैस लेते थे, उन्होंने उस प्रतिबंध की वजह से ईरान कहाँ चला गया, चाइना के फोल्ड में। ये लगातार ये होता जा रहा है। अभी रशिया भी चाइना के फोल्ड में जा रहा है। अगर आप प्रतिबंध लगाएंगे तो कंप्लीटली वहां चला जाएगा, स्विफ्ट पे प्रतिबंध लगते ही। दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिकली मार्केट्स भी गिर रहे हैं, साथ साथ में यूएस को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। केवल अपनी जो अप्रूवल रेटिंग है उसको बढ़ाने के लिए वॉर मॉन्गरिंग करना, ये ना ब्रिटेन को शोभा देता है, ना ही ये यूएस को शोभा देता है, बट ये किया जा रहा है, और आई डोंट सी एनी लॉजिक इनटू इट। इसमें एक मेजर डाउन टर्न आ रहा है, जैसे भी आपने बोला इकोनॉमी पे ऊपर, बिकॉज इकोनॉमी पे अभी लोग पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ अमेरिका में भी लोग परेशान है, बहुत परेशान है। हाई गैस प्राइसेस, इकोनॉमी डाउन है, इन्फ्लेशन, एक्सपेंसेस, मतलब सबके लिए इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर पीपल। तो इन दिस सेंस स्विफ्ट को यूज करना, स्विफ्ट सिस्टम को यूज करना, जो कि अमेरिकन बेस्ड सिस्टम है, और यूएस डॉलर को बैन करना एक कंट्री के लिए, ये इट इज ए प्रेसिडेंस। भाई किसी के साथ भी हो सकता है, अगर रशिया के साथ हो रहा है, भारत के साथ भी हो सकता है, किसी और। तो इससे अमेरिकन ट्रेड रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन उठते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, यूएस ने जब मैं फिर से उस बात पे वापस जाता हूँ कि यूएस ने जब प्रतिबंध लगाए, यूएस ने जब तक काटसा लगाया या और भी कोई ट्रेड प्रतिबंध लगाए, या इवन अभी जो स्विफ्ट बैन करने की बात कर रहे हैं कि स्विफ्ट प्रतिबंध हम रशिया पे डाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि कंट्रीज जो है और टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे। आज यूएस डॉलर एक अभी भी इंटरनेशनल करेंसी है। अभी भी यूएस को ये नहीं भूलना चाहिए कि दे आर द लीडिंग कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। China is slowly encompassing the US,
But abhi bhi, till to date, US is the biggest military. US has been the biggest service provider for the डॉलर अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड के बाद डॉलर ही जो है वो मैक्सिमम ट्रेड होता है। और स्विफ्ट सिस्टम से एंटायर जो वर्ल्ड का जो ट्रेड है, जो शिपिंग के थ्रू हो रहा है, वो सारा का सारा ट्रेड है, वर्ल्ड ओवर ट्रेड, वो यूएस डॉलर में हो रहा है। आप जिस तरह लगातार आप जो एक इनवर्टली जो आप निर्णय लेते जा रहे हैं, अपने आप को एक ककून में ये बंद करने की बात हो रही है। यूएस जो है अपने पूर्वग्रह छोड़ने को तैयार नहीं है। उसको सोवियत रशिया के से प्रॉब्लम है, बट उसने जब सोवियत रशिया के अगेंस्ट में जब अफगान को मुजाहिदीन को सपोर्ट किया तो उन्होंने क्या एक फ्रैंकेस्टाइन खड़ा किया, उसी फ्रैंकेस्टाइन में फिर जाकर 9/11 का हमला किया। तो आपने इंडिया के अगेंस्ट में खड़े होने के लिए अफगान तालिबान मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए जब आपने 80s में जब पाकिस्तान को जब खड़ा किया, तो जो वेपन्स आपने पाकिस्तान को दिए वही वेपन्स आपके फोर्सेस के अगेंस्ट में तालिबान ने लेटर ऑन यूज किए। ये चीजें आप लगातार एक आपकी जो नीतियां हैं उसकी खामियां दिखा रहे हैं। आप तालिबान खड़ा करने वाले भी आप हैं, मुजाहिदीन खड़ा करने वाले भी आप थे। इवन पाकिस्तान में जो आतंकी गुट खड़े हुए हैं, लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, या फॉर दैट मैटर अलकायदा, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये अमेरिका की जो नीतियां हैं उसकी जो खामियां हैं वो रही है। अगर मैं वापस जाऊं कि देखिए, आप जब ये करने की कोशिश करेंगे, जब आपकी आप पुराने कोल्ड वॉर के जो आपके जो फैसिनेशन आपके मन में लगे हुए हैं, आप एक सोशलिज्म के अगेंस्ट में या जो भी आपके मन में है, उससे अगर जब तक आप दूर नहीं होते, आप ये इट विल बी अ बिग इशू फॉर द यूएस। और इकोनॉमिकली डॉलर धीरे धीरे अपनी जिस तरह से अभी डिजिटल करेंसीज आ रही है, बिग कंट्रीज आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल करेंसी, और कहीं ये ना हो जाए कि डॉलर पे जो लोगों का जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाए। एंड इसका मतलब ये होगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली यूएस वर्ल्ड ओवर अपनी जो पकड़ है वो घुमाएगा, वो खो देगा। ये नहीं होना चाहिए। उनको दे शुड सिट बैक एंड हैव another look at that policy, that foreign policy which is right now going haywire, because अफगानिस्तान में विड्रॉल के बाद जो उनकी नाक कटी थी, जो परिस्थिति खराब हुई थी, what मिस्टर बाइडेन सेड दैट जिस तरह से हमें हेलीकॉप्टर भेज के यूएस एम्बेसी वियतनाम के ऊपर से जिस तरह से इवैक्यूएट लोगों को करना पड़ा था, उस तरह हमारे सोल्जर्स नहीं आएंगे। बट आप सोचिए, अभी कल ही का जनरल पांडे साहब का स्टेटमेंट आया है कश्मीर से, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का, कि कश्मीर में यूएस जो अफगानिस्तान में जो वेपन्स एबंडन करके आ गया था, वो ऑलरेडी इंडिया हमारे तरफ कश्मीर में पहुंच चुके हैं, पीओके में पहुंचे हैं, फिर इंडिया में आतंकवादी लेके वो वेपन्स पहुंचने लगे। इसका मतलब कि आप बात तो वॉर अगेंस्ट टेरर की करते हैं, बट आप ही के वेपन सिस्टम्स आप जो छोड़ के गए, आपको लिटरली भागना पड़ा, वो सब आज टेररिस्ट बिंदास से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां लगातार इसलिए निर्माण हो रही है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां बार बार इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो थिंक टैंक है वो या तो नॉन एग्जिस्टेंट है, या फिर जो सीआईए की एक फ्लोर्ड पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए मिस्टर बाइडेन कहीं ना कहीं बहुत बड़े गलत निर्णय ले रहे हैं, और उसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड ओवर सबको भुगतना पड़ रहा है। जी आदित्य जी, आपने एक बहुत अच्छी मतलब महत्वपूर्ण बात बताई कि कश्मीर में अमेरिकन अफगानिस्तानी वेपन्स पहुंचे हैं, और वो इंडियन आर्मी ने पब्लिकली इसको डिस्क्लोज भी किया है एक्चुअली। तो ये जो अफगानिस्तान, क्या इस पे अमेरिका, इंडिया को, भारत को क्वेश्चन उठाना चाहिए अमेरिका से कि आपके वेपन्स आपके लापरवाही की वजह से इधर पहुंच रहे हैं, तो कुछ इंडिया उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकता है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। ये सही सुना है? नहीं, मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और ये इट इज लाइक इनडायरेक्टली यूएस हैज, पहले क्या था कि आप याद करेंगे जब 90s में जब इंडिया में जब इन्होंने कश्मीर पाकिस्तान से भेजे हुए जो आतंकियों ने जो इंडिया में जिहाद चालू किया, उसके बाद एक्सोडस हुआ कश्मीरी पंडितों का, उसमें जो वेपन्स यूज हुए वो वेपन्स भी वही थे जो 80s में सोवियत रशिया के विरुद्ध लड़ने के लिए मुजाहिदीन को दिए गए। वो मुजाहिदीन भी वही थे जो पाकिस्तान के बालाकोट जैसे मानशेरा में जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, बालाकोट का तो सबसे ज्यादा इनफेमस ट्रेनिंग कैंप था जहां बड़े बड़े आतंकियों ने ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग कैंप्स इनको एस्टैब्लिश करने में भी ये तालिबान के लोग
ये अलकायदा के लोग, जिन्होंने बाद में किसी को तालिबान कहा गया, किसी को अलकायदा कहा गया, बट ये वही मुजाहिदीन थे जिनको की ब्रीड किया गया पाकिस्तान आर्मी के कैंप्स में आईएसआई के द्वारा, और उनको वेपन्स, उनको ट्रेनिंग, उनको उनको पूरा सपोर्ट यूएस के द्वारा दिया गया, और वही स्टिंगर मिसाइल्स यूज हुए, वही वेपन्स यूज हुए, यूएस के वेपन्स यूज हुए, और रशिया ने इवेंचुअली अफगानिस्तान छोड़ दिया, जो इन्वेजन उन्होंने किया था उससे वो लोग वापस चले गए। किंतु वो वेपन्स जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो वो वेपन्स ही, और वही ट्रेंड मिलिटेंट्स, वही ट्रेंड टेररिस्ट, वही मुजाहिदीन, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, चाहे वो एफ पाक रीजन के हो, चाहे और पंजाबी टेररिस्ट हो, कश्मीरी टेररिस्ट, वो सारे इंडिया में आए, और इंडिया में आके उन्होंने टेररिज्म अपना एस्टेब्लिश किया, क्योंकि वहां पे उनका जो रोल था वो खत्म हो चुका था। अभी नेक्स्ट टारगेट वॉज इंडिया। अभी वही चीज अफगानिस्तान में हो रही है। अफगानिस्तान में जो लोग ट्रेंड हुए थे, या जो जो उनको लेफ्ट ओवर करके किया गया था, जो वेपन्स छोड़ दिए गए, अब वही वेपन्स, वही टेररिस्ट, जबकि यूएस जा चुका है, वहां का संघर्ष उनका खत्म हो चुका है, तालिबान हैज कम इनटू पावर, so now all the efforts, all the energy, and all the weapons that were left away by the United States of America are being employed against India by the ISI and their famed friends JEM and the Lashkar-e-Taiba. जी। एक्चुअली अगर हम लोग देखें कि सेम वेपन्स आ रहे हैं, इससे सेंसिटिव इशू है, और आई एम श्योर कि भारत के जो फॉरेन अफेयर्स है वो उस पर एक्ट करेगी उस पर बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर हम शास्त्र नीति से देखते हैं कि अभी एक्ट किया जाए, बाद में नहीं। जब शास्त्र नीति, नारद मुनि तो यही बोलते हैं युधिष्ठिर को कि जब दुश्मन कमजोर हो तब उस पर आक्रमण किया जाता है, जब मजबूत है तब तो नहीं किया जाता है। वो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में चलता है कि तुम अपने शस्त्र उठाओ तब आक्रमण करेंगे, बट युद्ध नीति बोलती है जब दुश्मन कमजोर हो तब आक्रमण किया जाता है। अगर दुश्मन सशक्त हो तो उससे संधि की जाती है। बड़ा सिंपल है, लॉजिकल भी है। तो अभी अमेरिका कमजोर होता जा रहा है और चाइना भी कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका कमजोर होगा तो चाइना, मतलब वो बड़े मूर्ख है, जो अब वो अपनी कैश का कोई मार रहे हैं, वहां पे उनको कैश मिल रहा है इस अमेरिका से, उसी को मार रहे हैं। क्योंकि अगर अमेरिका कमजोर हुआ डायरेक्टली चाइना पे अफेक्ट होगा, क्योंकि वो चाइना से खरीद नहीं सकते, क्योंकि चाइनीज प्राइसेस हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली। तो ये जो मूर्खता वाला है, लेकिन भारत का जो चाणक्य नीति, हम लोग चाणक्य की हमेशा बात करते हैं, चाणक्य पूरी है भारत में, लेकिन और चाणक्य के नाम पे हमारे कितने थिंक टैंक्स चलते हैं भारत में, लेकिन ये चाणक्य नीति पे विदेश, जो भारत का फॉरेन अफेयर्स है, उस पर काम कर रहा है, क्या करना चाहिए उसको? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, ये पक्की बात है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि बहुत सोच के चलता है, और चाणक्य तो ये हमारे पूर्वज रहे हैं और वही हमारे सोच रही है। मैं फिर से यूएस पे जाना चाहूंगा कि परिस्थिति की वक्रता या वृद्धि की जो वक्रता है, उसको अगर देखें कि यूएस कर क्या रहा है। चाइना और इंडिया पिछले 1.5 साल से बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कन्फ्रंटेशन पे है। दोनों तरफ 50 to 60,000 सोल्जर्स इन इनहॉस्पिटेबल एनवायरमेंट आर फेसिंग टुगेदर। यूएस एक तरफ ये कहता है कि दे आर एलाइज ऑफ इंडिया, बट दे हैव रिफ्यूज्ड टू से अटर अ सिंगल वर्ड। कुछ भी बोलने को वो लोग तैयार नहीं है, वो चाइना के अगेंस्ट कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ना ही अभी उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को आर्म्स एंड एम्यूनिशन देंगे, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि वी विल सेंड द आर्मी, बिकॉज यूएस इज इनकेपेबल ऑफ सेंडिंग देयर आर्मी टू फाइट द रशिया। और बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हो रही है, बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन एनी सून। दूसरी बात कि यहाँ चाइना और इंडिया इतना बड़ा कन्फ्रंटेशन में है, इंडिया के साथ मोरल सपोर्ट तो छोड़िए, बट यूएस हैज नॉट शोन एनी नॉट स्पोकन अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट चाइना, जो कि चाइना उनका सबसे बड़ा, अगर मैं ये कहूँ कि अभी फ्यूचर एडवर्सरी, जो ऐसा एक कंट्री जो कि यूएस की जो वर्ल्ड ओवर जो पावर है या वर्ल्ड लीडर की जो पोजीशन है, उसको चैलेंज बहुत जल्दी करने वाला है। पिछले 5 वर्षों में चाइना ने इतने वॉरशिप्स, 80 वॉरशिप्स बना दिए, 80 इन नंबर वॉरशिप्स हैव बीन बिल्ट बाय चाइना। उतना तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी उतना फास्ट प्रोडक्शन वॉरशिप्स का नहीं होता था। तो चाइना इज लीडिंग द रूट लाइक एनीथिंग। और ऐसे समय में यूएस अपने एक्चुअली उसके पास जो अपनी जो पावर है उसको मिसयूज कर रहा है, मिसफायर कर रहा है, और रशिया के अगेंस्ट में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। रशिया हैज, वो ऐसा मान के चल रहे हैं कि 1980 का या 70 के दशक का जो रशिया था, वही जो उनका ट्रेडिशनल जो फो था और जो बाइपोलर वर्ल्ड था, जिसपे कि एक तरफ रशिया था, दूसरी तरफ यूएस था, वो चीजें अभी है नहीं।
और उसको टू इमेजिन थिंग्स एंड इमेजिन वॉर लाइक सिचुएशन और रोज अनाउंस करना कि आज इन्वेड करेगा रशिया, it should not, it doesn't suit US anyway at any cost. अभी दूसरी बात मैं इंडिया के ऊपर आऊँ, जो कि आपका प्रश्न था कि इंडियन थिंक टैंक्स क्या कर रहे हैं, उनकी इस समय क्या सोच चल रही है। तो इंडिया अपने हर कदम बहुत फूंक के चल रहा है। इंडिया इज अ कंट्री दैट डजंट इंडल्ज इनटू अदर पीपल्स वॉर्स, या दूसरे लोगों के जो झगड़े हैं उस पर हम नहीं पड़ते बहुत जल्दी। और ये हमारी पॉलिसी बहुत वर्षों से रही है और ये पॉलिसी हमारी आगे भी रहेगी। दूसरा, ऐसे समय में जब ऐसी फ्लूइड सिचुएशन हो, ऐसी संवेदनशील परिस्थितियां निर्माण हो गई हो, और उस समय ये भी नहीं है कि हम एकदम फ्री बैठे हैं और वी हैव नथिंग टू फियर। हम चाइना के साथ वी आर एंगेजिंग हॉर्न टू हॉर्न, तो आईबॉल टू आईबॉल उसमें हमारे और चाइनीज सैनिक एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यहाँ कब युद्ध हो जाए ये हमें पता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम कहाँ ये नाटो और यूक्रेन और रशिया और इन सब चीजों में अपनी बात कहेंगे। और ये बहुत ही चतुराई से, क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री मिस्टर एस जयशंकर है, ही इज अ सीजन्ड स्टेट्समैन। वो सबसे इससे पहले विदेश मंत्री बनने से पहले भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं, विदेश आयुक्त रह चुके हैं। तो ही इज अ सीजन पर्सन as far as the foreign policy of India is concerned. His entire life, for the 60 years of his life, he has served as a diplomat for India abroad. So and he is an expert in Chinese affairs. तो मुझे ये पक्का मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिकली अपना जो अपनी सेफर साइड है उसको रखे चल रहा है, और दूसरों के जंग में या दूसरों की जो लड़ाइयाँ हैं उसमें घुसने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका की शुरू से ये स्ट्रेटेजी रही है इंडिया को दबा के रखना? पहले पाकिस्तान था, अभी पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया है, और पाकिस्तानियों ने कितने अमेरिका के ऊपर आतंकवादी आक्रमण भी किए हैं पाकिस्तानियों ने। अब उन्होंने चाइना को यूज करना शुरू कर दिया है टू कीप इंडिया डाउन समवेयर और द अदर, क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया डिफेंस पे फोकस करेगा, अपनी बॉर्डर्स पे असुरक्षित रहेगा, ग्लोबल स्टेज पे राइज नहीं कर सकता। अमेरिका ने पब्लिकली बहुत बार बोला कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाएंगे, लेकिन कभी कोशिश नहीं की। लेकिन अभी आप देखेंगे शायद वो रशिया को यूएन से निकाल भी सकते हैं, परमानेंट मेंबर से निकाल सकते हैं। पांचों देश मिलके, चाइना उसमें वीटो करेगा तो उसमें वो निकाल देंगे रशिया को, ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं। तो नाउ इंडिया इतना बड़ा एलाई बताता है अपने आप को, क्वाड का भी मेंबर है। तो डू यू थिंक कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया को तो इंडिया को एक तरीके से दबा के रखना, उसको इकोनॉमिक लेवल पे आगे नहीं आने देना, चाइना को आगे लेके आने देना, क्योंकि अमेरिका हैज हमें ऑलवेज चोजन रॉन्ग पार्टनर्स, ऑलवेज, अदर देन उनका जो कोर ग्रुपिंग है, जो कॉलोनियल ग्रुपिंग है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कंट्रीज का एक ही कनेक्शन है, यूके ने तीनों पे राज किया है, आज भी यूके के लिए बहुत सिंपैथेटिक भी है, और कनाडा इनके साथ जुड़ा हुआ है, कनाडा भी डिक्टेटरशिप बन चुका है। बट सो दिस कॉलोनियल ग्रुप, ओल्ड कॉलोनियल ग्रुप वर्सेस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या आपको इस तरह का युद्ध की आशंका दिख रही है, चाहे वो सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो? नहीं, डेफिनेटली आपकी जो बात है वो एक तरह से सही भी है कि यूएस हैज ऑलवेज उनका एक अपना ग्रुपिंग बना के रखा है, और उनको जो वफादार लगे, जो उनके, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑलवेज हैड दिस बैगिंग बॉल इन देयर हैंड्स, और उन्होंने पीछे अपना टेल हमेशा वैग किया है। सो दे हैड पाकिस्तान इन देयर फोल्ड, बट इंडिया हैज बीन अ वेरी स्ट्रांग कंट्री। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री। सो इंडिया ने कभी अपनी टेल वेग इंडिया करी भी नहीं है और करेगा भी नहीं। इंडिया अपने आप को एम्पावर कर रहा है, इंडिया अपने आप को इंडिजनाइज करके खुद वर्ल्ड ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है। सो यूएस was uncomfortable a bit when initial rise of India began after some years of independence, जब 71 का वॉर हमने जीता, या जिस तरह के हमने अपने प्रावस दिखाए। बट एट प्रेजेंट मैं बताऊं को तो अभी परिस्थिति यह है कि मिस्टर बाइडेन इज सो मच बिग, और थिंकिंग प्रोसेस शायद इस एज में ही हैज एन इश्यू विद दैट। सो वो सोच नहीं पा रहे हैं कि उनके दुश्मन कौन है, उनके साथी कौन है, और किसके साथ उनको खड़ा होना है, किसके अगेंस्ट खड़ा होना है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी पैरालिसिस मुझे दिख रहा है।
मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग हमारे अगेंस्ट है, बट ये भी नहीं है कि उनका कंप्लीटली साथ हमें मिल पा रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा स्केप्टिकल है, पता नहीं किस हिस्ट्री को पढ़ के वो लोग चल रहे हैं, बट दे आर वेरी स्केप्टिकल while dealing with India, while having even while having a friendship with India. We are trying our best. हम ये कर सकते हैं, दोस्ती में हमेशा हाथ मिलाए जाते हैं, दोस्ती में झुका तो नहीं जाता। जिस तरह पाकिस्तान झुकता है, या जिस तरह सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान या फॉर दैट मैटर उनकी जो मिलिट्रीज रही है, उन्होंने जिस तरह से यूएस के साथ अपना टाई अप रखा है, वैसा तो इंडिया कभी करेगा नहीं। और भी जो कंट्रीज है जिन्हें की यूएस अपना एलाई बताता है, बट इवेंचुअली वो उनको अपने फोल्ड में अपना हेजिमोनी दिखा के रखता है, वैसा तो इंडिया से होगा नहीं। तो इंडिया यूएस को ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि इंडिया एक उसका अलाई है और इक्वल पार्टनर है। उसके बाद में उनके पास जो टेक्निकल पावर्स है, उसके थ्रू इंडिया को एम्पावर करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ उतना ज्यादा आई डोंट सी दैट मच ऑफ कोऑपरेशन, बिकॉज यूएस का हमेशा यही रहा है कि वो अपनी जो डिफेंस सिस्टम है वो बेचने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। प्रेडेटर ड्रोन उनको बेचना जरूर है, बट प्राइसिंग इतनी हाई रखते हैं कि इट डजंट लुक कि वो एक अपने अलाई को बेच रहे हो। तो ये परिस्थितियां क्यों निर्माण होती है? एक तरफ आप पाकिस्तान को वर्षों तक फ्री में एड देते हो, आप पाकिस्तान को आप वर्षों तक इन द सो कॉल्ड नेम वॉर अगेंस्ट टेरर आप सपोर्ट करते हो, और इतना ज्यादा F-16 आपने दे रखे हैं, आपने स्टिंगर मिसाइलें दे रखी हैं, अफगानिस्तान में इतना सारा वेपन्स आप छोड़ के, और जहां एक अपने एलाई के साथ डील करने की बात आती है, अपने एलाई को एम्पावर करने की बात आती है, हम बैगिंग माउंट लेके तो नहीं आ रहे, बट आपकी जो प्राइसिंग है वो तो फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो यूएस अपना और वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यूक्रेन के मामले में हम यूनाइटेड नेशंस में उनके साथ खड़े रहे। ये बड़ी विकट परिस्थिति है कि आप बातें तो कर रहे हैं, आप कोर्ट की बात हो रही है, कोर्ट में डिस्कशन हो रहे हैं, बट कहाँ आप स्ट्रांगली आपको अगर किसी देश को अपना एलाई बनाना है, तो उसको टेक्निकली जहां जहां इंडिया कमजोर पड़ रहा है आईओआर के अंदर, उसको इंडिया को एम्पावर करने के लिए आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आप कौन से ऊपर से कासा सैंक्शंस की भी बात आ रही है कि हमने अभी S-400 ले लिया है तो हमारे ऊपर कासा सेक्शन ला दे जाएंगे। अब वो भी गॉड नोज यूएस करेगा कि नहीं। तो ये इन परिस्थितियों में मुझे तो ये लग रहा है कि एक कोई थिंकिंग कैप पहने कोई बंदा आए, या कोई यंग लाइक मिस्टर ओबामा, कोई यंग प्रेसिडेंट यूएस को मिले और चीजों में फर्क आए। बिकॉज आज की परिस्थिति में मिस्टर बाइडेन इज लुकिंग टोटली क्लूलेस, चाहे वो वाइल डीलिंग विथ दी पैंडेमिक हो, जब से वो आए हैं फ्लिप फ्लॉप चालू ही रहे हैं, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ फ्लिप फ्लॉप करते रहे हैं। और अब चाइना के साथ चाइना ने बार बार बायलैटरल मीटिंग्स में यूएस के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया, बहुत ऐसा व्यवहार तो शायद कोई अपने दुश्मन से भी ना करे। ऐसी इस तरह से बायलैटरल मीटिंग्स में राजनीतिक मीटिंगों में बातें हुई है चाइना की ओर से, फिर भी यूएस जो है वो झुकता जा रहा है। क्या रीजन क्या है वो गॉड ओनली नोज, और ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है। उससे यूएस की इमेज लगातार खराब होती जा रही है वर्ल्ड ओवर। दूसरा, अफगानिस्तान से विड्रॉल ने उनकी इमेज को जो बचा कुचा जो डेड था वो भी कर दिया। जी, नारद मुनि, चाणक्य ऋषि ने जब अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र तो एक पूरे समाज को एक तरीके से मैनेज करने की बुक है, पुस्तक है ना। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि चाणक्य नीति या नारद मुनि जो युधिष्ठिर को बोलते हैं कि दुश्मन को हमेशा कंफ्यूजन में रखा जाए, दुश्मन को हमेशा कंफ्यूजन में रखा जाए, बिकॉज अगर आप दुश्मन को कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे तो दुश्मन सशक्त हो जाएगा, इज वेरी कॉमन। तो क्या ये युद्ध नीति है? इसी को युद्ध नीति बोलते हैं कि आप अपने दुश्मनों को कमजोर रखें और अपने अलाइज को स्ट्रांग बनाएं। लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे हैं, इस सिनेरियो में हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि अमेरिका कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे इंडियन इकोनॉमी बचे, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग हो। और मैं आपको इतिहास बताता हूँ, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन इतिहास ये है कि अमेरिका के जितने भी दोस्त हैं अदर देन देयर कॉलोनियल फ्रेंड्स, जैसे यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके अलावा सबका नुकसान हुआ है। जैसे मैक्सिको उनका कॉलोनियल फ्रेंड नहीं है, तो मैक्सिको हमेशा पुअर है डिस्पाइट ऑन द बॉर्डर। और मैक्सिको में ड्रग प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है कि वो अनस्टेबल रहता है कंप्लीटली। हाइती इतना पास में है, इतना गरीब देश। तो अमेरिका के आसपास जितने भी देश हैं, ये मेरी लास्ट पुस्तक में भी है, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। लोग सतोलॉजी पे सर्च करें अमेजोन पे तो दे विल फाइंड द बुक गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। उसमें मैंने ये सब रीजंस दिए हैं कि ये आज भी कॉलोनियल
पावर्स रूल कर रही है पृथ्वी पे, ये सभी यही लोग रूल कर रहे हैं। तो अपने एलाइज को कमजोर रखना, अपने दुश्मनों को यूज करना अपने एलाइज के अगेंस्ट, और एक दुश्मन हमेशा रखना ताकि लोग डरे रहे, ये तो कणिक नीति हो गई, कणिक नीति। ये चाणक्य नीति भी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है अमेरिका के लिए। तो बट एक तरीके से वो वही फॉलो कर रहे हैं जो हमारे गुरुओं ने हमको बताया, लेकिन हम लोग नहीं फॉलो कर रहे ना। अगर हम लोगों को कुछ करना चाहिए तो हमको इस प्रकार की नीतियां रखनी पड़ेंगी ताकि सनातन धर्म आगे बढ़े। बट सो व्हाट यू सी, आर वी रियली फॉलोइंग आवर स्क्रिप्चर्स? हम लोग चाणक्य नीति का यूज करें, चाहे कोई भी हो, एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स जो होते हैं दे आर ट्रेन्ड इन द लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम, not in the चाणक्य नीति, not in the like dharma is neither left nor right, dharma is in the center। धार्मिक नीतियां नहीं है, धार्मिक नीतियां इस प्रकार की होती है, दुश्मन को हमेशा कमजोर रखो, अपने दुश्मनों को अपने से पास रखो ज्यादा। तो आपको क्या लगता है अमेरिका लॉन्ग टर्म में इंडिया को दुश्मन मानता है, इसलिए पास रखने की कोशिश करता है, कुछ देता नहीं है, लेकिन दुनिया में हम लोग खुश हो जाते हैं। कोई किसी ने बोल दिया आप हमारे अच्छे दोस्त हैं, या बाइडेन ने गले लगा लिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो हम बड़े खुश हो गए, उसी में हमारा जिंदगी निकल गया। डू यू थिंक हम लोग कहीं पे वी आर मूविंग अवे, हम लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे, चाणक्य नीति का पालन नहीं कर रहे? मुझे दिख रहा है यहाँ पे अमेरिका पालन कर रहा है, इंडिया नहीं। नहीं, ऑफकोर्स देखिए, इंडिया चाणक्य नीति का हमेशा से पालन करता है, और वो इनहेरिटेंस है। देखिए, ये इट इज अवर हिस्ट्री, और ये हमारा इनहेरिटेंस है जिसको कि हम हमेशा साथ लेके चलते हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है कि इंडिया में एजुकेशन का एक इश्यू था, और खासकर जिन्होंने फॉरेन अफेयर्स और सोशियोलॉजी पढ़ा है वो सारे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में ही ग्रो अप हुए हैं, इंक्लूडिंग भी मैं भी खुद सोशियोलॉजी का ही मास्टर्स मैंने किया हुआ है। सो आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू। बट ये पक्का है कि इंडिया में ना एक मैं कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि एक लगातार एक फ्री थिंकिंग की एक पॉलिसी आई है, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक कल्चर डेवलप हुआ है, जिसको कि हमने पहले भी कहा कि थिंक टैंक्स कहा जाता है। वी हैव सो मेनी थिंक टैंक्स, जैसे कि मनोहर पारेकर आईडीए से है, चाणक्य फोरम है, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज है, उसमें देयर आर सो मेनी थिंक टैंक्स जिसमें कि फॉरेन से भी लोग आते हैं, और इंडिया के भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट्स, हमारे डिप्लोमेट्स, ये सब लगातार इसके ऊपर चीजों के ऊपर इवेल्यूएट करते हैं और लिखा जाता है। तो ये एक इंडियननेस है जिससे कि नए थॉट्स आ रहे हैं, नए विचार आ रहे हैं, और इस पे डिस्कशंस हो रहे हैं। और जब व्हेन यू हैव पब्लिक डिस्कशंस, व्हेन यू हैव पेपर्स रिटन ऑन सब्जेक्ट्स, व्हेन यू हैव पेपर्स रिटन ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई बंदा अगर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है तो वो अपना ओन डिसीजन, और डिसीजन तो उसका ही है, बट इवेंचुअली ये जो डिस्कशंस हो रहे हैं, ये तो जो ऑल ओवर इंडिया जो थिंक टैंक्स बन रहे हैं, इतने सारे थिंक टैंक्स, और अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं कि मेडियोकर काम हो रहा है, तो उन थिंक टैंक्स के जो थॉट प्रोसेसेस हैं, जो वहां से पेपर्स आ रहे हैं, उनका हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो उसमें से जो पॉजिटिव चीजें हैं उनका इम्पैक्ट आता ही आता है, और वो हमेशा इट शोज इन योर फॉरेन पॉलिसी। इवन वाइल डीलिंग विद चाइना की बात करें, चाहे वो वाइल डीलिंग विद अगर हम इवन रायसीना डायलॉग कहें, जिसमें कि अभी रिसेंटली थोड़ा सा विवाद भी हुआ था, और जर्मनी के नेवी जो चीफ थे उन्हें रिजाइन करना पड़ा। तो रायसीना डायलॉग्स में भी हम देखते हैं कि इट इज अ बिग गवर्नमेंट थिंक टैंक, और उसमें भी लगातार फॉरेन से नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के जो चीफ है वो आते हैं, और यहाँ पे आके डिस्कशंस होते हैं, ओपन डिस्कशंस होते हैं, ओपन फोरम रहता है, और जिसमें इवन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछना अलाउड रहता है। सो इंडिया में एक फ्री विलिंग थॉट की बात है। इंडिया में देयर इज नो डीप स्टेट, अनलाइक इन अमेरिका, जैसे कहा जाता है कि CIA इज दी डीप स्टेट दैट रन्स अमेरिका फ्रॉम बिहाइंड, और खासकर यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है which looks non existent now, वो इसी वजह से है कि CIA हैज फॉल्टर्ड। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को और नेशनल पॉलिसी को अगर इफ यू ना कहते हैं ना कि आप इन लोगों के भरोसे छोड़ दोगे तो परिस्थिति काफी विकट होके खड़ी हो जाएंगी। अब मैं यूएस की बात करूं तो यूएस की जो पॉलिसी अब तक रही है, मैंने पहले भी कहा कि वो बार बार ये नजर आ रहा है कि वो फॉल्टर कर रही है। फिर भी अगर वो लोग उस चीज से निकल के एक नई सोच और एक नए विचार से चल के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने के लिए अगर अपने दोस्त फॉरेन जो फ्रेंडली कंट्रीज है, फ्रेंडली नेशंस है लाइक दी इंडिया, अगर उनको एम्पावर नहीं करेंगे और अपने कॉलोनियल माइंडसेट, वैसे कहा जाता है कि यूएस इज अ
फ्री थिंकिंग वर्ल्ड, एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, बट उनका जो कॉलोनियल हैंगओवर है, इट इज रिफ्यूज टू गो अवे, जिसका कि क्लियर कट उदाहरण ये है कि उन्होंने क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस मानते हुए भी उसको एम्पावर नहीं किया है, जबकि एक नया अलायंस फिर से ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ बना बैठे, तो उसका अकूस अकूस करके जो अलायंस बनाया है, तो ये क्लियर है कि वो अपना जो कॉलोनियल हैंगओवर है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरा, आप देखें कि वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, जो पंजाबी मुस्लिम्स थे, पीएम जिनको कहा जाता है हमारे लिंगों में, उन्होंने ब्रिटिश को काफी सपोर्ट किया था। सो उनके तरफ उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो पाकिस्तान को टिल डेट उन्होंने जो सपोर्ट किया, पाकिस्तान को लगातार जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दिया, मिलिटरी सपोर्ट किया और उनके साथ अलायंस बनाते रहे और टिल द डे कि चीजें आउट ऑफ द रूफ ना चलेगी, तब तक वो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अभी भी पाकिस्तान को टेरर स्टेट डेजिग्नेट नहीं कर रहे हैं और उसको ऑल्दो फाटा के नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है, हफीज सईद और मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट को अलग अलग नामों से फंडिंग हो रहा है, टेररिज्म को फंडिंग हो रहा है, वो सब पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है, बट फिर भी स्टिल ग्रे लिस्ट में लगातार पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान लगातार रह रहा है, बट कहीं ब्लैक लिस्ट नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे सब यही कारण है कि क्लियर है कि पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, तो वो भी इसलिए क्योंकि एक डीप स्टेट जो कि कहीं पीछे रह के काम करता है, जिसको कि सीआईए कहा जाता है, वो उनकी थिंकिंग प्रोसेस इस पे ऊपर काम कर रही है। उनकी जो लोग लीड करने आ रहे हैं, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, उनकी अपनी कोई क्लियर थॉट प्रोसेस इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आप एक तरफ जो एक पहले एक ऐसा होता था कि एक वन अमेरिका या एक यूएस में ना सरकारें बदलती रहती थी, बट यूएस का जो थिंकिंग प्रोसेस है या जो उनका जो डीलिंग विथ फॉरेन पावर्स है वो चेंज नहीं होता था। अभी तो ये देखने को मिल रहा है कि जहां जब ट्रम्प थे तो चाइना फोकस थे और लगातार चाइना का जो चाइनीज वायरस के ऊपर भी उन्होंने काफी स्टेटमेंट्स दिए, चाइना के ऊपर काफी प्रतिबंध डालने की भी काम हुए, और यहाँ जब से बाइडेन आए हैं तो वो अमेरिका की सडनली जो फोकस फ्रॉम चाइना हैज गॉन अवे, और अभी सडनली उनका फोकस जो है वो इट इज ऑल रशिया रशिया एंड रशिया। ये हो क्या रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, और ये कौन सा कहाँ से पीछे से कोई इसको दोहरी संचार कर रहा है, कोई इसको कोई ऐसा कठपुतली की तरह इनको चला रहा है गवर्नमेंट को, क्या हो रहा है ये वर्ल्ड ओवर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से एब्रप्टली विड्रॉल हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो विदहेल्ड करेगी, जो कि अचानक जैसे पहले भी हुआ था कि वो सकम कर गई तालिबान के अगेंस्ट में, इस बार भी वो बहुत जल्दी सकम कर गई। तो ये सब उनकी पॉलिसी पैरालिसिस को दिखाता है, और इससे बाहर आने के लिए उनको मैं तो ये कहता हूं कि इतना परिस्थिति विकट है तो बंदा डिजाइन क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है जी। एक्चुअली अमेरिका में अभी जैसे अमेरिका ये अगेन युद्ध नीति आ गया सब जगह, युद्ध नीति, क्योंकि आप कॉलोनाइजेशन भी देखेंगे तो पूरा युद्ध नीति पर ही कॉलोनाइजेशन हुआ। गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। गोल्ड में सोना चुराना या धन चुराना, ग्लोरी मतलब अपने भगवान की ग्लोरी ढूंढना, ग्लोरी में सेना भी आ गई सारी, और तीसरा भगवान। इन 3 के बेसिस पे पूरा कॉलोनाइजेशन हुआ। और आज जो कॉलोनाइजेशन जो सेम माइंड चल रहा है अभी भी, चाइना ने इसको बेटर समझा है हमसे ज्यादा। चाइना ने ट्रेड को यूज किया और उसने इन तीनों चीजों को, चाइना के कॉलोनाइजेशन में गॉड भी नहीं है और ग्लोरी भी नहीं है, ओनली गोल्ड है, सिर्फ गोल्ड है, क्योंकि उनका कोई रिश्ता नहीं है उन सब चीजों से। तो सिर्फ उसके लिए उन्होंने दे आर डूइंग द सेम थिंग, लेकिन उसके लिए वो यूज करें एनार्किज्म को, लोगों के अंदर से एजुकेशन सिस्टम को कैप्चर करना। और एक्चुअली अगर आप हम लोग के शास्त्र देखेंगे एवरीथिंग, क्योंकि हम लोग को एक नए तरह का एनालिसिस चाहिए। भारत की सीमाओं की रक्षा तो एक सेकेंडरी बात हो गई, लेकिन भारत की जो कल्चर की रक्षा, वो दायित्व होना चाहिए सेना का। दैट वाज अ दायित्व फॉर युधिष्ठिर एंड अदर पांडवास आल्सो इन द इंक्लूडिंग चोला मर्तंडवर्मा ने डच के साथ युद्ध किया फॉर प्रोटेक्टिंग द कल्चर ऑफ केरला, उनके देश का। सो द सेम वे यू डिफेंड प्रॉपरली। क्या आपको लगता है कि जैसे अभी वी ऑल नो कि अभी अमेरिकन डॉलर, अगर स्विफ्ट सैंक्शंस लगे
तो वो रशिया के लिए भी उतना खतरा है, लेकिन ये प्रेसिडेंस बन गया कि भारत के ऊपर भी लग सकता है। और डॉलर अगर भारत से विड्रॉ कर दिया, भारत के सारे डिपॉजिट्स है, उसका कोई वैल्यू नहीं, पेपर वैल्यू हो गया, तो भारत का तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो एक अगर इसको ओपनली हम सोचे कि किस तरह हम अपने मतलब भारत को भी हम सशक्त बनाना चाहते हैं, और मैं तो बड़ा दुविधा में रहता हूँ, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों साइड, भारत से मेरा ज्यादा लगाव है। तो हाउ इंडिया कैन मेक स्ट्रॉन्गर यूजिंग चाणक्य थ्योरी, मतलब मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, ये जो सैंक्शन है जिससे अमेरिका कमजोर होता जा रहा है, इधर टेक मैक्सिमम एडवांटेज, और चाइना इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, उसके साथ हम लोगों को मिलिटरीली तो उसको डील करना ही पड़ेगा किसी कहीं ना कहीं आके। चाइना कोई और भाषा समझने वाला नहीं, अगर इंडिया ताइवान के जैसा होता, चाइना के प्लेन दिल्ली में उड़ रहे होते डेफिनेटली, वो करते वो लोग। लेकिन हम लोग कुछ एक्शन लेते नहीं है, वी एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू डू समथिंग फॉर अस। क्या ये चतुराई है या स्ट्रेटेजी है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी गोइंग ऑन? और अगर अगर ये सब चलता रहा, तो भारत के जो इलेक्शन है, जो हर 2 साल 1 साल हर साल होते हैं भारत में इलेक्शन, उसमें सब लोग इंटरफेयर करेंगे अगर उनको पता लगा, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यूएस की बात करूंगा कि आई डोंट सी कि यूएस ऐसे कोई सैंक्शंस इंडिया पे बहुत जल्दी डाल रहा है। हाँ, ये कहीं दिख रहा है, वी आर एबल टू सी कि अगर स्विफ्ट का प्रतिबंध यूएस ने रशिया पे लगाए, लेट मी श्योर यू कि इट विल बी अ बॉडी ब्लो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओनली। इससे और किसी को हानि हो ना हो, सबसे बड़ी हानि इससे अमेरिका को होगी। और जो हेजिंग है, जो यूएस डॉलर का जो हेजिंग है, वो बहुत बहुत उस पर असर पड़ेगा। और ये नेचुरली है कि वर्ल्ड ओवर जो फेथ ऑन द यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर इज ये एक पता है, ये एक ऐसी करेंसी है जो कि एक एक बहुत बड़ा नाम है, और इसके ऊपर वर्ल्ड ओवर ट्रेड हो रहा है। आप जॉर्ज वॉशिंगटन की फोटो के ऊपर पूरा वर्ल्ड ट्रेड डिपेंड करता है। आप उसको एक इतने बड़े कंट्री के अगेंस्ट में अगर बैन लगा देंगे, स्विफ्ट पे ट्रेड करने को बैन लगा देंगे, तो बहुत बड़ी परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, और यूएस डॉलर पे जो लोगों का भरोसा है, वो भरोसा खत्म हो जाएगा। वो अगर भरोसा खत्म होता है, तो बट नेचुरल है कि इंडिया ऑल्दो इज न्यूट्रल कंट्री, और यूएस के साथ आई डोंट सी India getting into a confrontation with US in next say 30 to 40 years. So वो बात तो नहीं है, बट ये पक्का है कि इंडिया विल ऑल्सो लाइक अदर कंट्रीज, लोग एक ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल ट्रेड की एक ऑल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल पे जाएंगे। हो सकता है कुछ डिजिटली जो इवॉल्व हो रहा है, इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी अगर बनाने की जो बात कर रहा है, तो शायद हम उसमें इवॉल्व हो जाए, ताकि हमें जो यूएस डॉलर्स का जो फॉरेन करेंसी जो अपने पास जो रखना पड़ता है, वो चीजों पे काफी फर्क पड़ जाए। और डेफिनेटली यूएस का अप्रूवल लेटर, मिस्टर बाइडेन के साथ अगर यूएस का अप्रूवल लेटर नीचे जाता है, तो वो ये कर रहे हैं कि अपने साथ साथ अमेरिका को भी लेकर डूब रहे हैं। और ये परिस्थिति जो अफगानिस्तान में उन्होंने जो बॉडी ब्लो खाया है, या जो उनकी जो साख पे जो असर पहुंचा है, वो असर उससे शायद कई गुना, उससे शायद 100 गुना असर रशिया में और यूक्रेन में इंटरवन करने से, या उस बात को लगातार ये करने से उनको होने वाला है, मुझे लग रहा है। अब बात करें चाइना और इंडिया का जो कन्फ्रंटेशन है उसकी, तो मैं याद देना चाहूंगा कि जब 62 का वॉर लगा था, तो उस समय तिब्बत में देयर वाज नो चाइनीज एयरफोर्स इन तिब्बत। और इंडिया के विंग कमांडर राय होते थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कैनबेरा से पूरा तिब्बत को सर्वे किया था, और वहां पे वी वर एबल टू सी दी चाइनीज सोल्जर्स। वो दौलत भाई गोल्डी, जो कि इंडिया का अभी एयर स्ट्रिप है, वहां तक चाइनीज दिख रहे थे, और फिर भी उन्हें एयर स्ट्राइक्स करने के लिए ऑर्डर नहीं मिला। मिस्टर नेहरू सेट बैक एंड एंजॉयड, उन्होंने वीके मेनन से भी मिले, वो आर्मी चीफ जो कॉल थे उनसे भी मिले। पर्सनल मीटिंग एक विंग कमांडर लेवल के अफसर की हुई, एक स्क्वाड्रन लीडर लेवल के अफसर की पर्सनल मीटिंग्स विद द रक्षा मंत्री एंड द आर्मी चीफ हुई, बट दे नोबडी वाज इंटरेस्टेड टू टेक एनी एक्शन। एयर स्ट्राइक्स के लिए ऑर्डर्स नहीं दिए गए, सेना जो थी, आर्मी जो थी, इल इक्विप्ड थी, और उसका जो परिणाम हमने देखा कि तिब्बत के साथ हमने गद्दारी करी, तिब्बत की जो हमसे जो आशाएं थी उसके साथ हमने गद्दारी करी, और आज चाइना उसको अनेक्स करके बैठा है। दलाई लामा जी को आसरा देना धर्मशाला में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो देखिए एक पीसफुल आदमी है और एक पीसफुल लोग हैं तिब्बती, उनको आसरा तो दिया है, किंतु
आपने मिलिटरीली, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा माना जाता है कि जो लिटरल नेशंस है या जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, वो सारे दे लुक अप टू अस। जैसे वर्ल्ड ओवर अब यूएस की तरफ लोग देखते हैं ना, उस तरह वर्षों से भारत की ओर देखा जाता था कि अपने आश्रय आए किसी को भी वो कभी, इवन अहमदाबाद की बात करूं कि अहमदाबाद का जो जो नवाब था, उसको बचाने के लिए हमारे यहाँ भूचर मोरी राजकोट के पास है, वहां पे अकबर की सेना से लोगों ने युद्ध लड़ा और हजारों लोगों का खून बह गया। उस नवाब जो कि मुस्लिम था, उसको बचाने के लिए हजारों हिंदू राजपूतों ने, आहिरों ने, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी, बलिदान दे दिए। तो भारत की ये हमेशा से परंपरा रही है। इस परंपरा को जताते हुए उसको डिस्कार्डिंग दैट अहिंसा, हम तो अहिंसावादी है, इंडिया डजंट नीड एनीथिंग, आर्मी की जरूरत नहीं है, वी ओनली नीड द पुलिस, और ये करते हुए हमने तिब्बत के साथ तो धोखा किया ही किया, बट साथ साथ में बहुत बड़ा अपना भारत का विस्तार, जो लद्दाख का जो प्रदेश है, वो भी गंवा दिया। आज ये होता कि शायद तिब्बत भारत का भी एक हिस्सा होता और हमें कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक उसके ये एडवांटेज मिलता जो कि हम सोच भी नहीं सकते, बट हमने कुछ भी नहीं किया। अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को सपोर्ट करने के लिए, जिस तरह 1971 में भी अगर हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े गए, उसके बाद भी गलतियां करी और बांग्लादेश को हमने खुला छोड़ दिया। बांग्लादेश की जो रेलवे है, बांग्लादेश का जो सिक्योरिटी है, जिस तरह जापान अभी अपनी आर्मी नहीं रख सकता, जापान की ऊपर अमेरिका की आर्मी, और जापान जो है वो डिफेंस फोर्सेस रख सकता है, बट दे कैन नॉट हैव एक्सपेडिशनरी फोर्सेस। वो मिलिट्री रखने के लिए उनको सो कॉल्ड प्रतिबंध अभी भी है, तब जब से उन्होंने वर्ल्ड वॉर में हटाया। तो हमने बांग्लादेश को अलग करने के लिए इतनी बड़ी भूमिकाएं निभाई, उसके बाद भी बांग्लादेश को हमने पूरा खुला छोड़ दिया। आज परिस्थिति यह है कि बांग्लादेश में भी इतना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म पनप चुका है। वही हाल नेपाल में भी है। नेपाल को हमने जो सपोर्ट देना चाहिए था शायद नहीं दिया और वो एक्सट्रीमिज्म की ओर चला गया। एक तरफ नेपाल में एक्सट्रीमिज्म इतना पनपा है, दूसरी तरफ जो माओवादी लोग हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि चाइनीज का वहां इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमने भूटान का जो डोकलाम का जो प्रदेश है, उसके आसपास अब चाइनीज फिर से हम देख रहे हैं कि अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, और हम एक जो बिग ब्रदर का रोल हमें अदा करना चाहिए था अपने आस पड़ोस में, चाहे चाइना, श्रीलंका का जो हम्मन टोटा है वो चाइना के पास जा चुका है। ये ईरान जो है, ईरान के साथ हमें रहना चाहिए था, बट यूएस के प्रेशर की वजह से और यूएस के ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे, उस वजह से हमने जो चाबहार पोर्ट है, तो कि हम उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग हो चुका था, फिर भी हमने खो दिया। तो ये पुरानी जो मिस्टेक्स है, जो ओल्ड मिस्टेक्स ऑफ दी अवर फोरफादर्स ऑफ द कंट्री, उनकी वजह से आज की परिस्थिति में हम बहुत सारे जो निर्णय हैं या बहुत सारे जो स्टेप्स हमें शायद हमें लगता है, एक कॉमन आदमी को लगता है कि लेने चाहिए, वो हम नहीं ले पाएंगे। बिकॉज देखिए, अगर लद्दाख की बात करें, जहां आईबोल टू आईबोल कन्फ्रंटेशन में इंडिया और चाइना की आर्मी है और इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, अभी टेम्परेचर जो है इट इज गोइंग अप टू -40 डिग्रीज, और दोनों सेनाओं के सैनिकों के साथ परिस्थिति काफी विकट है। बट ऐसी परिस्थिति में भी जो अग्रेसिवनेस समय था जब दिखानी थी, वो हमने दिखाई भी है, और चाइना के इतने सारे शायद 39-40 सैनिक हमने मार भी गिराए थे। किंतु एक लॉन्ग टर्म मिलिट्री स्ट्रेटेजी या मिलिट्री स्टैंड लेना वो हमने जरूर किया है। अटैक करने का जो हमसे एक्सपेक्टेशन था, वो हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाइना इज नो स्मॉल कंट्री। यूएस ने जो कोशिश वो यहाँ पे कर रहा है कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वैसी अनाउंसमेंट्स और चाइना और इंडिया को भी अग्रेसिव करने के लिए किए। इंडिया को भी बार बार उकसाने की कोशिश की गई कि हम चाइना पे अटैक कर दें, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। इससे हम तो डिस्टेबलाइज, जैसे पहले भी शुरू में भी हमने, इस डिबेट के शुरू में भी हमने बात करी, कि इस डिस्कशन के शुरू में भी, कि नो कंट्री कैन अफोर्ड अ वॉर। हम युद्ध से दूर बिल्कुल नहीं भागते। इंडिया इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम अ वॉर, बट नीदर वी नॉर चाइना कैन अफोर्ड अ वॉर। सो कन्फ्रंटेशन तो है और उसको एमिकबली सॉल्व करने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, और नहीं हुआ, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया विल डेफिनेटली क्रॉस द बॉर्डर, हम या एलएसी, या अगर जरूरत पड़ी तो हम दुश्मन को उसकी जो करेक्ट स्पॉट है वो दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे, ये पक्का है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। इंडियन आर्मी हैज ऑलवेज बीन दी बेलिजरेंट फोर्स इन दी अरेना, और चाइनीज हमारे सामने टिकने वाले नहीं है, वो टॉय सोल्जर्स टाइप के हैं, वो बचने वाले नहीं है। बट यूएस के दबाव में आके, या यूएस जिस तरह से यूक्रेन से हम आपको आर्म्स देंगे, हम एम्युनिशन देंगे, हम सपोर्ट करेंगे, और उसको रशिया के खिलाफ उकसा रहा है, वो जो चीजें कर रहा है, देखिए वहां भी सेना का कन्फ्रंटेशन हो रहा है। 1.5 लाख सैनिक रिपोर्ट आ रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पे खड़े ये कर दिए है, उस तरफ यूक्रेन ने भी अपनी डिफेंस प्रिपेयर करी है, जैसे यहाँ हुआ है। तो ना यूक्रेन को यूएस के चढ़ावे ने
यूएस के उकसाने पे, चाहे नाटो के उकसाने पे, चाहे यूके के उकसाने पे, ना इंडिया को या ना चाइना को, किसी को भी ये जो कंट्री जो वॉर मॉन्गरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को प्रोमिनेंस में लाने के लिए जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे वेपन्स बिकने लगे, हमारे जो वेपन प्लेटफॉर्म्स हमने इतने सारा इन्वेस्टमेंट किया है वो बिकने लगे और हमारी इकोनॉमी चलने लगे। उसके लिए अगर ये किया जा रहा है तो ये तो होने वाला नहीं है। ये हम लड़ेंगे, हम अपने समय हम तय करेंगे, जगह हम तय करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम जरूर लड़ेंगे, बट वी आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट, नीदर वी आर गोइंग टू फोर्स अ वॉर। इंडिया इज वेरी क्लियर इनटू इट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनन जी फॉर वेरी क्लियरली एक्सप्रेसिंग योर व्यूज। और बाकी व्यूअर्स के लिए भी अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या मानसिकता है इन लोगों की, यू कैन रीड वन ऑफ माय बुक गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड आल्सो, और मनन जी की पुस्तक है पुलवामा के ऊपर, वो जरूर पढ़िए, बालाकोट के ऊपर। और मतलब उसमें उन्होंने आपने रीजन भी दिया ना, पुलवामा से शुरू हुआ एंड देन बालाकोट पर पहुंचे, यू हैव गिवन द एंटायर स्टोरी। सो वो जरूर पढ़िए हमारे सैनिकों के लिए। और फॉर द व्यूअर्स मैं बता दूं, पहली पुस्तक जो मेरी आई थी सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी, वो मैंने पुलवामा के सोल्जर्स के लिए डेडिकेट की थी, क्योंकि वो इट वाज द, अभी तक लोगों को शायद अभी कोई याद नहीं होगा, लेकिन इट वाज अ सोल, मतलब हम लोग की आत्मा हिल गई थी उस इंसिडेंट के बाद। 45 सोल्जर्स जो भारत के मरे थे वहां पे। तो इट इज ए मेमोरी विच वी नीड टू रिमेम्बर। और इतिहास को अगर आप याद नहीं रखेंगे तो वापस दोहराता है, ये बड़ा साधारण सा चीज है। ये महाभारत, ये कुछ चेंज नहीं हुआ है। महाभारत में भी इस प्रकार की हरकतें थी दुर्योधन की, और रावण की उस प्रकार की हरकतें थी रामायण काल में, और आज कुछ देशों की हरकतें उसी प्रकार की है। तो स्ट्रेटेजी बदलती नहीं है, टूल्स बदल जाते हैं, टूल्स बदल गए हैं कि सेनाएं अलग तरीके से लड़ती हैं आजकल। आजकल मोर कलयुग स्टाइल है, तो रात में ज्यादातर युद्ध होते हैं या दूर से होते हैं युद्ध, फ्रॉम ए डिस्टेंस, पास में कोई युद्ध नहीं होता है। तो एनीवे, बट द थिंग्स आर स्टिल द सेम, और चेस इज स्टिल द सेम। और तो भारत ने चेस इन्वेंट किया है, तो इस समय चेस खेलने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। और मनन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आने के लिए शो पे। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।